الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد غالب لمقام عزتہ وسفین شجاعت غیبتہ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تباركه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مل کے صلوات پڑھیں عالم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نام بڑا بلند ہے بلند آواز سے نام لے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جس کے دل کے اندر جتنا جتنا علی آباد ہے اتنی بلند نعرہ حیدری حسینیت زندہ آباد یزیدیت مردہ آباد صلوات ایسی پڑھیں کہ آل محمد ہم پر راضی ہو جائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد توجہ ہے صاحبان بزم معرفت آج 30 محرم الحرام ہے 3 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ 1444 ہجری ہے اور یہ اسلامی نظریے سے نیا سال ہے سب سے پہلے خطیبہ شام گواہ شہادت مظلوم امام جناب زینب عالیہ کی بارگاہ میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے دل کو علی دھڑکن کو حسین سانسوں کو حسن اور ہاتھوں کو عباس کے لیے بنایا ماشاءاللہ جس کا ہاتھ عباس کے لیے بنا ہے وہ اٹھا کے خیرات مانگے گا ماشاءاللہ کل ایمان نعرہ حیدری سلامت ہیں جناب سیدہ خیرات عظیم سے نوازیں ماشاءاللہ ذرا پریشان ہو کے نہیں سننا صاحبان آج چونکہ موضوع تھوڑا مشکل رکھا ہے میں نے جتنا بھی شکر ادا کریں اس پروردگار کا تھوڑا ہے کہ جس نے آنسوئے حسین کے نام پر ہمیں یوسف اشک عزا عطا کیا ماشاءاللہ اگر جملے کی سمجھ نہیں آئی تو میں تشریح کر دیتا ہوں میں نے کہا اللہ نے ہمیں یوسف اشک عزا عطا کیا ماشاءاللہ آغا وحید خراسانی ایران کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ جو ہماری آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو ہے یہ یوسف اشک عزا ہے بندہ کتاب پڑھ کے آغا وحید خراسانی کے گھر پہ آیا دک الباب کیا دروازہ کھولا آغا صاحب نے سامنے دیکھ کے کہنے لگا کہ بلا آپ نے کیسی بات کی ہے آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو یوسف اشک عزا ہے یہ آپ نے کیا کہہ دیا یوسف نبی میں اور یوسف اشک عزا میں کیا فرق ہے تو آغا فرماتے ہیں یوسف اشک عزا میں اور یوسف نبی میں بس اتنا فرق ہے کہ اس یوسف کی جگہ مصر کا بازار ہے اس یوسف کی جگہ رومال زہرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہاتھ اٹھا گیا ہے وہ جناب سیدہ سے خیرات لے گیا آپ سلامت رہی مٹھے ہاتھوں کا سیدہ خیرات عظیم سے نوازیں سمجھ آ رہی ہے نا سرکار بات کی اس یوسف کی جگہ مصر کا بازار ہے اس یوسف کی جگہ توجہ میری طرف رکھیے گا دائیں بائیں نہیں دیکھنا کیونکہ ہمارے ہاں دائیں بائیں دیکھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے میں پڑھا ہوں تو میری طرف دیکھیے
आगा वहीद खुरासानी ने कहा उस यूसुफ की जगह मिस्र का बाजार है, इस यूसुफ की जगह रुमाल सैयदा है। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया है जिसमें अल्लाह फरमा रहे वमा खलक़्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हबीब इनसे कह दे मैंने नहीं खल्क किया जिन्नो इंस को सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे शिया सुने दोस्त समझ आ गई बात की। अल्लाह कह रहे मैंने तुम्हें खल्क इसलिए किया है कि तुम मेरी इबादत करो। इसलिए खल्क हुए जनाब, जरा सारे बोल लेंगे तो कोई बात नहीं। आपकी तख्लीक बेसिक इबादत पे हुई है। अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा किया कि आप इबादत करें। अब आप खल्क ही इबादत के लिए हुए हैं। अल्लाह से बड़ा सच्चा कोई नहीं। कुरान पढ़ रहा हूँ, हदीस तो पढ़ नहीं रहा। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं हबीब इनसे कह दे वमा खलक़्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इन्हें नहीं खल्क किया, जिन्नो इंस को नहीं खल्क किया सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। अब सरकार बंदा और जिन खल्क हुए हैं अल्लाह की इबादत के लिए। बात क्लियर हो गई, समझ आ गई सरकार? अच्छा अब जरा इबादतें गिनते हैं। बंदा खल्क ही इबादत के लिए किया अल्लाह ने। अब जरा इबादत गिने। 5 वक्त की नमाज है, 30 दिन के रोज़े हैं, 3 दिन का हज है, ज़कात भी इबादत है, दरूद भी इबादत है। अच्छा जितनी भी इबादत हैं सरकार उनका एक वक्त मुकर्रर है, यानी कि नमाज का एक वक्त है सरकार। जिसने फजर की पढ़ी है वो ज़ोहर तक फ्री है, यानी कि वो ज़ोहर तक फारिग है, इबादत से फारिग हो गया बंदा। लेकिन अल्लाह कह रहे मैंने खल्क ही इबादत के लिए किया है। बैठ के सुन रहे हो? अल्लाह कह रहे हैं मैंने खल्क तुम्हें पैदा इसलिए किया है कि तुम मेरी इबादत करो। लेकिन परवरदिगार से सवाल किया कि परवरदिगार जोहर पढ़ लें तो असर तक फ्री हैं, क्या माजरा है परवरदिगार? अच्छा अब रोजे ये भी इबादत है, रोजे गिन ले। 30 दिन के रोजे होते हैं, बेशक रोजे गुजर जाए बंदा फिर बरीउल इबादत है, ये क्या माजरा है? हज होता है वो 3 दिन का हज होता है, अमीर के अलावा हज पे कोई जा नहीं सकता, ज़कात अमीर के अलावा कोई दे नहीं सकता। परवरदिगार से सवाल किया परवरदिगार क्या माजरा है? आपने तो कुरान में फरमाया है कि तुम्हें पैदा ही इसलिए किया कि तुम मेरी इबादत करो। लेकिन परवरदिगार जब हम इबादतों को गिनते हैं, इबादतों की गिनती शुरू करते हैं तो हर इबादत का एक वक्त मुकर्रर है, उसका एक टाइम आता है जब हम इबादत अदा कर देते हैं। उस इबादत के अदा करने के बाद परवरदिगार हम फिर फारिग होते हैं। अब क्या करें? तेरे से बड़ा सच्चा कोई नहीं। तूने कहा मैंने पैदा ही इबादत के लिए किया है। मुसलमान जब परेशान हो गया ना तो आ गया सरकार हुसैन की बारगाह में सजदा करके मुसलमान कहने लगा या हुसैन मौला हम परेशान हो गए हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा खलक़्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने नहीं खल्क किया जिन्नो इंस को सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करे। मौला जितनी भी इबादतें गिनी है उनका एक वक्त मुकर्रर है, हम चाहे तो कहा जाए। हुसैन फरमाते हैं घबराते क्यों हो, हम है ना यहाँ। इल्ला लियअबुदून से मुराद इल्ला लियअरिफून है। जिसने हमारी मारिफत हासिल की उसने अल्लाह की इबादत की। वो नजफ के शाह से खैरात लेके दोनों हाथ उठा के सलामत रहे। जिसने हमारी मारिफत हासिल की उसने अल्लाह की इबादत की। मेरे पे यकीन नहीं आता, किसी मौलवी से पूछ लीजिएगा कि असल में मारिफत ही इबादत है। अगर मारिफत ना हो तो इबादत कैसी? बता दो मारिफत क्या है? 14 की मोहब्बत रखना ये है मारिफत। अगर इनकी मोहब्बत ना हो तो कोई नमाज नहीं, कोई इबादत नहीं। अगर इनकी मारिफत है, आयत ये बता रही है कि अगर इनकी मारिफत है फिर मारिफत रख के जो भी अच्छा काम करो वो इबादत है। समझ आ गई सरकार? इनकी मारिफत रख के अब जो भी अमल करोगे वो इबादत है। ये भाई सॉन्ग चला रहे हैं मजलिस हुसैन में, अच्छा अमल कर रहे हैं, आप तक आवाज आ रही है, ये भी इबादत है। अब इबादत तब होगी जब 14 मासूमीन की मारिफत होगी। कहाँ बैठ के सुन रहे हो? 14 की मारिफत होगी तो इबादत होगी। अच्छा मैंने एक फिक्रा पढ़ना है। कई लोग ये कहते हैं कि अज़ादारी हुसैन इब्ने अली करना ये गुनाह है। भाई रसूल कह रहे हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ।
जो नबी हुसैन से है ना, हम उसी हुसैन का जिक्र करते हैं जी। ये अज़ादारियाँ करना, ये पता नहीं शियों को क्या हो जाता है। जब मुहर्रम का दिन चढ़ता है, ये हुसैन की सबीले, हुसैन का मातम, फर्श अज़ा, जिक्र हुसैन का करते हैं। क्या माजरा है? ये गुनाहगार हैं, जन्नत में नहीं जाएंगे। ठीक है सरकार, हमारा भी यही अकीदा है। गुनाहगार का तो जन्नत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। गुनाहगार जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे शिया सुनी दोस्त, घबराना नहीं है। मैं आपको दावा किया है, दलील देकर जाऊंगा। गुनाहगार का वाकई में जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई घबरा गया है, मैं दलील देने लगा हूँ। गुनाहगार सरकार जन्नत में नहीं जा सकता। दलील देने लगा हूँ। जैसे कालीन हवा में उड़ नहीं सकता, गुनाहगार जन्नत में जा नहीं सकता। दलील सुनना मेरी। जैसे कालीन इस पूरे पिंडाल से उस बंदे को वास्ता दे रहा हूँ जिसके घर का चूल्हा हुसैन मौला की नालैन के सदके में जलता है। वो शहंशाह करबला को फिक्रे पे हाथ उठा के सलाम करके खैरात मांगेगा। जैसे कालीन हवा में उड़ नहीं सकता, गुनाहगार जन्नत में जा नहीं सकता। जैसे चांद दो टुकड़े हो नहीं सकता, गुनाहगार जन्नत में जा नहीं सकता। जैसे सूरज पलट नहीं सकता, गुनाहगार जन्नत में जा नहीं सकता। जैसे इंसान मछली के पेट में रह नहीं सकता, गुनाहगार जन्नत में जा नहीं सकता। जैसे लोहा मोम हो नहीं सकता, गुनाहगार जन्नत में जा नहीं सकता। अकल के अंधों के लिए दलील ये है, गुनाहगार जन्नत में नहीं जा सकता। कैसे? जैसे कालीन हवा में उड़ नहीं सकता, गुनाहगार जन्नत में जा नहीं सकता। अब दलील ये है कि कालीन हवा में उड़ सकता है अगर उड़ाने वाला सुलेमान नबी हो। कालीन हवा में उड़ सकता है अगर उड़ाने वाला सुलेमान नबी हो। चांद के टुकड़े हो सकता है अगर करने वाला मुस्तफा नबी हो। सूरज पलट सकता है अगर पलटाने वाला अली हो। लोहा मोम हो सकता है अगर करने वाला दाऊद नबी हो। इंसान मछली के पेट में रह सकता है अगर रहने वाला यूनुस हो। इसी तरह गुनाहगार जन्नत में जा सकता है अगर ले जाने वाला मजमा सलामत रहो। अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अलबाद दुश्मन लाना, बेशुमार, अलबाद दुश्मन लाना, बेशुमार, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हैदरी। या अली। वाह जी वाह, सरकार क्या बात कहने। की। माशाल्लाह माशाल्लाह गुनाहगार माशाल्लाह। जन्नत में जा सकता है अगर ले जाने वाला हुसैन हो। बेशक और वैसे भी मातम गुनाह नहीं है, बेशक हुसैन को रोना गुनाह है। बेशक। हाँ, और अगर किसी ने ये सवाल के बाद दलील लेनी है तो मैं अहले सुन्नत की किताबों से दिखा सकता हूँ। फिक्र नहीं करनी। और रसूल ने मातम करने वालों को दुआ दी है। बेशक बेशक। हाँ, किताब का नाम सीरतुन नबी। बेशक उसमें ना दिखाऊं मेरा कत्ल माफ है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अगर रसूल ने माशाल्लाह, दुआ दी हो तो फिर सरकार बात है ना। माशाल्लाह। सरकार हमजा का मातम किया बेशक मदीने की औरतों ने। बेशक मक्का फतह हुआ ना तो सरकार वापस आए तो मदीने की औरतों ने मातम किया। बेशक कई मौजूद थे सहाबी भी, उन्होंने भी मातम किया। बेशक तो रसूल ने उनको दुआ दी बेशक कि खुदा तुम्हारा भला करे, बेशक तुमने मेरे चचा का मातम किया। बेशक यानी रसूल मातमियों को दुआ दे रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छा, जो बात करते हैं ये रोना मातम करना बिदअत है। सरकार रसूल ने ये फरमाया था कि मुर्दा को नहीं रोना चाहिए, बेशक माशाल्लाह मुर्दा का मातम माशाल्लाह। जायज है। रसूल ने मुर्दों के लिए कहा है कि मुर्दों का मातम जायज नहीं है, शहीद जिंदा होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिससे इनकार करे वो कुरान का इनकार करता है। चूंकि अल्लाह कुरान में कहता है शहीद जिंदा होता है, मुझसे रिस्क भी पाता है, तुम्हें नजर नहीं आता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका मातम नाजायज है। बेशक यानी रसूल ने कायनात को समझा दिया। बाबा जी, रसूल दुनिया को ऐसे तो नहीं ना छोड़ सकते, बेशक बेवारस बेशक बेमायना ही छोड़ दिया। नहीं, रसूल वारिस हैं क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुज्जत है, बेशक अल्लाह की तरफ से मजहर है। बेशक। बात क्लियर होगी ना सरकार? अल्लाह की तरफ से हुज्जत है, मजहर है। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ। हदीस रसूल है, ये तो बड़ी आम सी हदीस है, सबको मालूम है।
کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایسے ہی ہیں سرکار. جو مالک ہوتا ہے نا جنت کا، اس کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہے دے. جن کو عبادتوں پر گھمنڈ ہے ذرا میری مثال سن لیں. یہ میری ٹوپی ہے، یہ میں نے لی ہے 2000 کی. یہ شاہ جی بیٹھے ہیں، علی رضا شاہ جی بیٹھے ہیں، کوئی ماتمی بیٹھا ہے مولا کا. شاہ جی کہتے ہیں نوروز بھائی میں آپ کو ٹوپی کے 3000 دیتا ہوں، یہ ٹوپی مجھے دے دیں. میں نے کہا سرکار آپ میری جان ہیں، میرے لائق احترام ہے، لیکن 3000 میں نہیں دیتا. رضا شاہ جی نے کہا نوروز بھائی میں آپ کو 10,000 دیتا ہوں، مجھے دے دیں. میں کہوں گا رضا شاہ جی آپ میری جان ہے، میرے بھائی ہیں، لیکن میں 10,000 میں نہیں دیتا. ایک ماتمی بولا سرکار میں 50,000 دیتا ہوں، مجھے دے دے ٹوپی. میں کہوں گا سرکار 50,000 میں نہیں دیتا، چونکہ میری چیز ہے، میری مرضی ہے، میری چیز ہے، میری مرضی ہے. بچہ کھڑا ہو کے کہتے کہ بلا مجھے ٹوپی بڑی پسند ہے، میرے پاس ہیں 10 روپے، میں اس کے 10 روپے لیتا ہوں، چومتا ہوں، ٹوپی اسے دے دیتا ہوں. شاہ جی فلاں آدمی میرے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، یار یہ کس کو بلا لیا ہے، یہ تو بندہ پاگل ہے، جھلا ہے، یہ تو دیوانہ ہے. میں 50,000 دے رہا تھا، اس نے ٹوپی نہیں دی. بچے نے 10 روپے دیے، اس نے اسے ٹوپی دے دی. اسی طرح مثال ہے، جنت ہے حسین کی مرضی. وہ 10,000 رکعت میں نہ دے، حسین کی مرضی 100 میں دے. حسین میں سلامت رہو. سرکار میں سلام کر رہا ہوں، ان ہاتھوں ہزاروں کو سلام کر رہا ہوں. سلامت رہو. جو حسین کی مرضی 1000 رکعت میں نہ دے، حسین کی مرضی 1 آنسو میں دے دے. کیونکہ مالک ہے نا جنت کے، مالک کی ملکیت ہے، جسے چاہے مرضی عطا کرے. آج میرا دل ہے کہ تھوڑا سا موضوع اس رخ کی طرف موڑا جائے. آج سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم